Hello students, here we are going to discuss introduction of Sanskrit drama. Sanskrit drama, one of the most sophisticated and developed form of classical theatre, holds a unique place in world literature and dramatic history. So Sanskrit drama is very much developed form of classical theatre, and very it has very unique place in the world literature. So that is something. Some Sanskrit drama are very important, flourishing in ancient India from roughly the 2nd century BC to 8th century CE. It represents a rich synthesis of poetry, music, dance, and elaborate stagecraft, deeply rooted in Hindu philosophy, mythology, and social customs. So that is very important. That's a synthesis of poetry, music, dance. These all come under drama. So, what's the origins and early development? The precise origins of Sanskrit drama are debated. We don't know exactly at what time it was started, but several theories and influences are commonly cited. What are they? First one, Vedic roots. Some scholars stress dramatic elements back to the Vedic hymns, dialogue hymns, ritualistic performances, suggesting a gradual evolution from religious ceremony and recitations. So, first is Vedic roots will find origin. Some scholars, according to some scholars, that's a dramatic elements back to Vedic hymns, dialogue hymns, or ritualistic performances, suggesting a gradual evolution from religious ceremonies and recitations. So it is said that from religious ceremonies and recitations, then this drama was origin, right? Number two is epic recitations. The recitation of epics like Ramayana, Mahabharat by professional storytellers, right? So that is Sutas, then Kusilavas, likely incorporated dramatic gestures, costumes, and vocal modulation, paving the way for more formalized theatre. So that's a second theory says that epic recitations, right? So Mahabharat, Bhagavad Gita, Ramayana. So these are the epics. So when storyteller of all these, so they incorporated means they express their uh, stories through gestures, costumes, and vocal modulations, and this way a drama was origin. Okay, now next theory says that folk traditions, local folk dances, puppet shows, and village performances such as yatras undoubtedly contributed to the development of dramatic conventions. So, local folk dances, right? Then puppet shows was very common, and village performances led to dramatic conventions. So that is somewhat that's a what we can say. Next step is drama. Then influence of Natya Shastra. The Natya Shastra by Bharat Muni, a comprehensive treatise on dramatic arts dated between 200 BCE and 200 CE, though some place in it later. So, Natya Shastra by Bharat Muni. It's a very big influence in drama, a comprehensive treatise on dramatic arts
from this to this is the most crucial source. So Natya Shastra is the most, it's the biggest source of drama. It codifies existing practices and provides a theoretical framework for all aspects of Sanskrit drama, suggesting a long period of prior development. And it is suggesting that long period of prior development, its very existence implies a mature dramatic tradition. So this is the origin, somewhat this the origin and early development. Now number 2, the Natya Shastra, the Bible of Sanskrit drama. The Natya Shastra is an encyclopedic work. So Natya Shastra is encyclopedic work, right? And that covers every conceivable aspect of dramatic performance, and that covers every conceivable aspect of dramatic performance. It is not merely a theoretical text but a practical guide for playwrights. So that Natya Shastra was practical guide, right? Because there were rules, there are rules and regulations, norms are written. So that is practical, that is practical guide for performance, right? Natya Shastra. Then uh, so then playwrights, actors, dancers, musicians, right? So Natya Shastra is very useful to all these. Okay, stage managers, उनके लिए ये एक तरह का गाइडलाइंस, एक तरह की बुक थी फ्रॉम विच दे डेवलप ड्रामा. नाउ theory of rasa and bhava. Ras is interest and bhavs is emotions. If you are interested, then you become emotional. That reflects from our face. So that is the cornerstone of Sanskrit aesthetics. Here we are talking about Sanskrit drama. So this is the cornerstone of stone of Sanskrit aesthetics, ras and bhav. Interest, ras, essence is very important, and bhav, reactions on face, is very important. So bhavas are emotional states. These are the human emotions: love, anger, sorrow, joy, fear, disgust, wonder, heroism portrayed by actors. So these are the bhavs, कि कभी गुस्से का, कभी प्यार का, कभी दुख का, कभी जॉय का, कभी फियर का, डिस्गस्ट का, वंडर का और हीरोइज्म का. लव का देखो तो ज़रूरत ही नहीं है, इट्स नो नीड टू टेल यू. लव इज़ एवरीवेयर. फादर सिस्टर लव, father, many love, right? Any two brothers love, two sisters love, brother sister love, lovers love, right? So that is love. Than anger, right? So anger we can remember, many angers we can remember. Ram's when he loses Sita, so then Lakshman's anger, right? Then Kekai's anger, then uh, Draupadi's anger, right? So many sorrow. Unfortunately, number of this year, number of tragedies are there, right? So that's a flight crash. Sorrow, right? Joy, marriages, parties. That's a joy, occasion of joy. Then fear. Now fear is that's when flight was burning, so that they were fear the very nanosecond, but then definitely they feel fear, right? Then disgust. So sometime that's a murder cases, many murder cases are, we have unfortunately listen in nowadays. So that's disgust, hate, right? Then wonder, surprise when the girl is getting married and on the other hand she only kills kills her husband. So that is wonder, right? But on a positive way, then there are very beautiful dances and all that creates wonder. Then heroism.
So heroism, you can see number of Navdeep. Right now I'm not getting, and he is differently abled a sports person who won in Olympic, right? So this is a heroism, that beyond your limit if you do something, and that is heroism. So these are the bhavs. Then rasas, aesthetic experiences. It's like this is the ultimate aim of the performance. That ras, interest, you have to create interest. Your act and then dialogues and props and everything should create interest. The refined, distilled emotional experience that the audience savors. When a bhav is effectively portrayed and experienced by audience, when bhav, happiness, sukh, dukh, गुस्सा, राइट, आश्चर्य, ये सारे भाव जब ऑडियंस फील करती है तो इट ट्रांसफॉर्म इनटू रसा, तो उसको मज़ा आने लगता है, मतलब वो इंटरेस्ट लेने लगती है, कौन, ऑडियंस. एंड देन देर आर ट्रेडिशनली 8 रसाज करस्पॉन्डिंग टू द 8 स्थाई भाव्स. मीन्स भाव है आपके अंदर तो रस भी है. कैसे? श्रृंगार, श्रृंगार फ्रॉम रति और लव फ्रॉम डिलाइट. सो दैट व्हेन वी आर हैप्पी सो दैन वी फील लव, एरोटिक हो जाते हैं, प्यार करने का मन करता है ना. तो वो कहाँ से आता है? डिलाइट से आता है, खुशी से आता है. फिर हास्य, हास्य किससे उत्पन्न होता है? फ्रॉम हास्य. लाफ्टर से कॉमिक, मतलब कैसे कि यहाँ पे क्या है? रसा करस्पॉन्डिंग टू द 8 स्थाई भाव्स. तो कौन से? ये सारे स्थाई भाव्स हैं, है ना, ये स्थाई भाव्स हैं. और ये क्या है? ये रसा है, ये रसा है. कौन से रस है? ये सारे रस हैं. तो श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है? डिलाइट है. हास्य का या कॉमिक का लाफ्टर, मतलब हंस, अगर किसी ने कोई कॉमिक या कोई जोक क्रैक करता है तो देन लाफ्टर, इट क्रिएट्स लाफ्टर. देन करुणा, पिथाटिक और सौरो, तो दैट इज शोक, जो बहुत सारी ट्रेजेडीज अभी हम देख रहे हैं. तो शोक या सौरो से पिथाटिक, करुणा, दया, दुख पैदा होता है ना. फिर रूद, फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा गुस्सा, कहाँ से आता है? क्रोध से आता है, फ्यूरियस, है ना. तो ये सारे क्या है? रसा है. ये दीज ऑल आर रसा एंड दीज आर स्थाई भाव, ये जो हमारे सबके अंदर है. क्रोध हमारे सबके अंदर है. फिर वीर जो है रस, हीरोइक, कहाँ से आता है? उत्साह से आता है. इफ़ वी आर एंथुजियाज्म देन ओनली वी कैन गो शो आर कैपेसिटी, राइट. देन भयानक, टेरेबल, फ्रॉम भय, भय से भयानक. भय कैसा? कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तो एक कोई भयानक चीज़ हमने देखी है ना, तो वो भयानक, भयानक कहाँ से आया? भय से आया, फियर से आया. फिर विभत्स, है ना, वो जो अभी मर्डर केसेस होते हैं तो उसमें जुगुत्सा, मतलब डिस्कस, किसी से हेट, लिमिट से ज़्यादा हेट करना, तो वो क्या क्रिएट करता है? वो विभत्स रस क्रिएट करता है. और अद्भुत, वंडरस, तो वो कहाँ से आता है? विस्मय से, वंडर से, वंडर से वंडरस, है ना, कि आपको आश्चर्य होता है तो आप आश्चर्यचकित होते हो. फिर 9th रसा, शांत रस, ये अभी ऐड हुआ है, ये 9th रस है. और ये शांत रस या ट्रैंक्विल. तो याद रखिए कि दिस इज द 9th रस, है ना, और शांत रस. डेराइव्ड फ्रॉम डिटैचमेंट, सम, ना बहुत सुख है ना दुख है, आप नॉर्मल हो तो आपके मन को शांति मिलेगी, है ना. एडेड पर्टिकुलरली बाय अभिनव गुप्ता. तो ये भरत मुनि उनके टेक्स्ट में नहीं है, विच वॉज एडेड बाय अभिनव गुप्ता, अनदर ऑथर, राइट. अभिनय, अब अभिनय गुप्ता इज ऑथर, बट हियर अभिनय मीन्स अलग बात हो रही है, दैट इज अभिनय एक्टिंग
फोर टाइप्स ऑफ एक्टिंग आर डिटेल्ड। एक्टिंग कौन सी होती है? अंगिका अभिनय। अंगिका अभिनय मतलब बॉडी मूवमेंट, अंग, अंग इज बॉडी। सो अंगिका अभिनय जिसमें क्या आ जाता है? बॉडी मूवमेंट्स, जेस्चर, पोस्चर, मुद्राज, है ना। फिर करनाज, तो मतलब अंगिका, आप अपने अंग से किसी मुद्रा या कुछ बनाकर जब एक्टिंग करते हो, अभिनय करते हो, तो मुद्रिका बनाते हो, मतलब बॉडी मूवमेंट्स करते हैं हम। फिर वाचिका, वाच मतलब बोलना। तो दूसरा क्या है? ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं फोर टाइप्स ऑफ एक्टिंग, है ना। तो ये टाइप्स ऑफ एक्टिंग है। तो एक एक्टिंग तो है जो अंगों से होती है, शरीर के अंगों, बॉडी मूवमेंट से, तो ये हो गई। दूसरी है स्पीच, डायलॉग, इंटोनेशन एंड पोएटिक रेसिटेशन, अलग अलग तरीके से बोलने से दूसरा अभिनय, जो कि अभी आप देखते हो लाफ्टर कपिल शर्मा शो, है ना, तो उसमें वाचिका अभिनव आप देख सकते हैं, कुछ कुछ बोल के हंसाते हैं। समटाइम दे स्पीक समटाइम इंटोनेशन, दे स्पीक इन अ डिफरेंट वे। फिर है आहार्या, आहार्या अभिनव। आहार्या मतलब कॉस्ट्यूम्स कुछ कुछ पहन के आ जाते हैं, मेकअप अजीब सा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सुंदर करते हैं, और स्टेज प्रॉपर्टीज़, इन सब के द्वारा जब ये होता है, अभिनय होता है, अभिनय का पार्ट है ये, है ना। और उसके बाद है सत्विका। सत्विका अभिनय, ये क्या है? इंटरनलाइज इमोशनल एक्सप्रेशन, सत्विका। और कन्वेइंग ट्रू फीलिंग्स थ्रू सटल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जैसे ट्रैम्बलिंग, है ना, बस ज़रा सा ट्रैम्बलिंग हो जाना, फिर टीयर, आंसू आ जाना, ब्लशिंग, लाल हो जाना, इसको कहते हैं सत्विका अभिनय। वो भी एक अभिनय है, दैट्स अ काइंड ऑफ टाइप ऑफ एक्ट, है ना। फिर म्यूज़िक, आपको भी पता है, संगीत, है ना। डिटेल इंस्ट्रक्शंस ऑफ वोकल म्यूज़िक, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्रामा में भी। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, रिदम, ताल और मेलोडी, है ना, राग, दीज ऑल क्रिएट एक्ट, राइट। फिर डांस, नृत्य और नृत्या डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन नृत्य, एक्सप्रेसिव डांस कन्वेइंग मीनिंग, एंड नृत्या, प्योर एब्स्ट्रैक्ट डांस मूवमेंट। तो ये डांस के तरीके बताए, नृत्य और नृत्या। फिर स्टेज डिज़ाइन, उसका भी फर्क पड़ता है। तो दैट्स अ नाट्यगृह, कैसा स्टेज बना है। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले हाउस, देयर डायमेंशंस, कंस्ट्रक्शन एंड अकॉस्टिक। यहाँ पे मैं आपको बताना, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट्स देयर इज़ अ लाइव ड्रामा, क्या, जाड़ता राजा, in which still there was Tulja Bhavani's statue, we can say, not statue, Tulja Bhavani's deities, uh, उनका एक प्रतिमा, idol of Tulja Bhavani we have seen. Still it is years back, 30, 70, 80 years back, sorry, 17, 18 years back. तो but still it is in my mind, बहुत बड़ी तुलजा भवानी की मूर्ति। तो दैट इज़ द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ स्टेज डिज़ाइन, कि वहाँ से निकल के कुछ आता है तो आप भूल नहीं पाते। और फिर है पूर्वरंगा। पूर्वरंगा है प्रिलिमिनरीज, अ सीरीज ऑफ रिचुअल्स एंड परफॉर्मेंसेस, इन्वोकेशन, सॉन्ग्स, डांस, कोरस, ये सारी चीज़ें इसमें आती है ना, प्रिलिमिनरी में। और उसके बाद कंडक्टेड बिफोर द मेन प्ले ऑफ प्योरीफाई द सेज एंड इन्वोक डिवाइन ब्लेसिंग्स। ये सब करना पड़ता है संस्कृत ड्रामा में। तो प्रिलिमिनरी पूरी सीरीज ऑफ रिचुअल्स और परफॉर्मेंसेस को। की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशंस क्या है संस्कृत ड्रामा के? इसमें सबसे पहले है पोएटिक लैंग्वेज। संस्कृत ड्रामा में हमेशा पोएटिक लैंग्वेज ही रहेगी। द लैंग्वेज इज हाईली स्टाइलाइज्ड and poetic, often employing complex meters and figures of speech। तो ये पूरी पोएटिक भाषा में ही होती है। फिर संस्कृत इज यूज बाय नोबल कैरेक्टर्स एंड ब्राह्मण्स। ये it was used by these
literate people and prakrit dialogues, various regional वर्निकुलर्स और उसके अलावा भी कई लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती है, आर यूज बाय वीमेन सर्वेंट्स, लोअर क्लास कैरेक्टर्स, है ना, रिफ्लेक्टिंग द सोशल हियरार्की. फिर एब्सेंस ऑफ ट्रेजेडी इन द वेस्टर्न से संस्कृत प्लेज जनरली डू नॉट एंड इन ट्रेजेडी विद द डेथ ऑफ प्रोटैगनिस्ट. जनरली नहीं करते इसमें, प्रोटैगनिस्ट अच्छी हालत में रहता है, उसकी डेथ नहीं होती. इवन इन द प्लेस with significant suffering, the resolution is typically happy or leads to a state of equilibrium. तो क्या है, इवन इन प्लेस सिग्निफिकेंट सफरिंग, कभी इसमें प्रोटैगनिस्ट की डेथ नहीं होती, हाँ सफरिंग हो सकती है. द रिजोल्यूशन इज टिपिकली हैप्पी और लीड्स टू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम मतलब मेंटेन करके चलना, रिफ्लेक्टिंग द हिंदू वर्ल्ड व्यू ऑफ कर्मा, कि जो हमारे यहाँ मानते हैं कि भाई कर्मा रिटर्न्स, कर्मा मैटर्स, धर्मा वर गुड इवेंचुअली ट्रायम्स. तो जो कर्म और धर्म में विश्वास करता है वो जीत जाता है. ऐसा नो वायलेंट एक्शन ऑन स्टेज, संस्कृत में होता ही नहीं है. डेथ, बैटल और अदर वायलेंट एक्ट्स आर नेवर डिपिक्टेड डायरेक्टली ऑन स्टेज बट आर नरेटेड और एम्प्लॉयड, है ना. फिर प्रेजेंस ऑफ विदूष का जेस्चर, तो क्या होता है, रिकरिंग कैरेक्टर यूजुअली अ ब्राह्मण हु प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ often through witty remarks, physical humor and distorted perspective on event. तो ये क्या है, विदूष का प्रेजेंस ऑफ विदूष का या जेस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर सूत्रधारना, तो ये क्या है, स्टेज मैनेजर, डायरेक्टर, है ना, जो कि सूत्रधार है, सॉरी. तो सूत्रधार इज मेन पर्सन. सूत्रधार इंट्रोड्यूसेस द प्ले राइट एंड मेन कैरेक्टर्स ऑफन एंगेजिंग इन अ ब्रीफ डायलॉग विद एक्टर्स. तो सूत्रधार मास्टर ऑफ सेरेमनी है जो सबको एक्टर एक्ट्रेस को इंट्रोड्यूस कराता है. फिर यूज़ ऑफ कर्टन, है ना, जिसको यवनिका कहा गया. कर्टन वॉज यूज, कर्टन यूज़ होते थे पहले प्राइमरीली फॉर एंट्रेंसेस एंड एग्जिट रादर देन टू मार्क सीन, वो अंदर आने जाने के लिए होते थे. फिर स्टाइलिश परफॉर्मेंस, एम्फेसिस ऑन जेस्चर लैंग्वेजेस, gestural language and highly choreographed movements and a blend of realistic and symbolic acting. तो ये एक स्टाइलाइज परफॉर्मेंस होता है जिसमें मिक्स एंड मैच होता है. उसके बाद फिर इंटरवीविंग ऑफ रसा, playwrights often weave multiple rasas throughout the play, though one rasa, the agni ras or dominant ras typically prevails, है ना. फिर है ये जिसको मैं अभी नेक्स्ट वाले में बताती हूँ. थैंक यू सो मच.